Now we are going to see classification of crystals. How solids were classified as crystals and amorphous we have just studied in previous slide. Now we are going to see how crystals are classified further. Crystals are classified in 4 categories, means there are 4 type of crystals. Category number 1, ionic solids. Category number 2, molecular solids. Category 3, that is metallic solids, and last category, that is 4th, covalent solids. So now we are going to classify all of them with all of their detailed properties. So we will just now try to define what do we mean by ionic solids, molecular solids, and these two. Any crystal whose constituent particles are ions, यानी जो crystal ions से बना है उस crystal को हम ionic crystal या ionic solid बोलेंगे. Ions means positively charged ions which are called as cations, or negatively charged ions which are called as anions. So all in all, in short, ionic solids उन crystals को, उन solids को कहा जाता है जिनके constituent particles are ions like cations and anions. And we can even try to draw them with example that what do we mean by ionic solids. Suppose this is a solid I'm going to draw here where these spherical balls represent one constituent particle of the crystal, in which these particles are densely, closely, compactly packed, touching each other. And now if I label these constituent particles, yes, suppose this is cation, this is anion, this is cation, this is anion, this is cation, and so on. In next layer, again, this is anion, this is cation, this is anion, this is cation, and so on. So in such type of crystals, what we see, cations and anions are closely packed. Such type of solids are called as ionic solids, where constituent particles are anions, and anions, constant particles are ions like cations and anions. तो यहाँ पर एक कैटेगरी की डेफिनेशन हमने खत्म की, that is ionic solids. Now let's shift to next category, molecular solids. Molecular solids are those solids in which constituent particles are molecules. Now what are molecules? Molecules are the smallest species of a compound which is able to survive independently, या जिसकी independent existence possible है. अब और proper अगर हम इसको define करें तो molecules are formed by the combination of 2 or more than 2 atoms combined via covalent bonds. For example, N2 gas. If we see N2 gas, so 2 N atoms are combined via 3 bonds. So we can write it as N2. Or there are few more examples of molecules like O2 or H2O. I'm writing few very common molecules which we must have gone through in our 11th class syllabus: oxygen, water, carbon dioxide, methane, carbon tetrachloride, sulfur dioxide, or even argon, noble gases, and lots more like HCl. All these I have written over here are examples of molecules. तो ऐसे जितने भी solids होंगे जिनके constituent particles are these individual molecules, ऐसे solids को कहा जाता है molecular solid. तीसरी कैटेगरी हमारे पास आती है metallic solids की. Metallic solids उन solids को कहा जाता है जिनके constituent particles are metals, only metals. ऐसे solids सिर्फ metals के केस में मिलेंगे, which is very obvious by its name. So constituent particles अगर metals हैं तो ऐसे crystals को कहा जाता है metallic crystals और metallic solids. And fourth category is covalent solids. Covalent solids उन solids को कहा जाएगा जिसका constituent particle ना तो ion है, ना molecule है, ना metal है. फिर क्या है? जिसका constituent particle एटम है, यानी ओनली एटम्स. इसका डिटेल जब अभी हम पढ़ेंगे देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट डू आई मीन बाय कोवेलेंट सॉलिड्स एक्चुअली. But for time being, just a plain definition if I want to understand, and that is
Ionic solids consist of ions, molecular solids consist of molecules, metallic solids consist of only metals, and covalent solids constituted by atoms only. अब एक एक करके हम इन सभी सॉलिड्स को डिटेल्स में पढ़ेंगे, तब जाके आपको बहुत क्लियर कट एक पिक्चर मिलेगी व्हाट डू वी मीन बाय each and every solid. So let's move to next slide where we are going to see what are ionic solids and its properties. As we have just seen the definition, ionic solids उन solids को कहा जाता है जिनमें constituent particles are only ions, and there exist two type of ions. One is cation, other is anion. तो ये cations और anions are closely, densely packed without much of the intermolecular spaces being wasted. So if I see this as a crystal of ionic substance, so it must consist of only ions. Suppose this is cation, anion, cation, anion. I'm drawing charge over here which will be easily visible to you that what do I mean by ionic crystal, ionic solid. So now, first thing, constituent particles are ions. Okay, that has been settled nicely now. What are the other properties of these ionic solids? First of all, these ionic solids share a very strong forces of attraction between their ions, between opposite charges, and those forces are called as electrostatic forces. जब भी किन्हीं दो चार्जेस के बीच फोर्सेस की बात होती है, they are only one kind of forces. They are electrostatic forces, or you can call them coulombic forces also. And these forces are very strong in nature. Since these forces are very strong, so it clearly indicates these ions are held together with each other very strongly. So very strong forces are very important character of these ionic solids, due to which these ions are strongly held inside the crystal, which leads to high melting point. It is very clear, if these ions are strongly connected or strongly attracted towards each other via these electrostatic forces, तो इन crystals को melt करने के लिए बहुत ज़्यादा temperature देना पड़ेगा, because इस crystal के forces को break करना is not going to be easy task, as these forces are very strong. So ये crystals या ये solids बहुत high melting solids होंगे. Third point, very obvious, these are very hard also. बहुत hard है, बहुत high melting point है इनका, क्योंकि strong forces of attraction मिलते हैं हमको ionic solids में. But yes, these are, because these are hard, these are brittle also. They are very brittle, very hard, high melting point. So all in all, we can say these crystals are highly stable because of their strong forces of attraction. Now comes, what are the examples? All ionic compounds will fall into this category, that is ionic crystals or ionic solids. So ionic crystals में आप example sodium, potassium, calcium, magnesium, copper, zinc, इन सब में से किसी के भी salt report कर सकते हैं, जैसे कि NaCl, KCl, इसी तरह से CaF2 या MgCl2 या copper sulfate. All these are examples of ionic solids. ये सभी ionic solids ये properties show करते हैं जो अभी हमने यहाँ पर indicate की. Now a very important property, last property of this solid, that is its electrical conductivity. Do they conduct electricity or they are insulators? Very important thing. अगर ionic solids की मैं बात कर रही हूँ, solids means इसके constituent particles are not going to leave their position. They are not going to move out of their position. And for conductivity, what we need, अगर मुझे किसी भी solid को conductor या insulator बताना है, तो सबसे पहली condition मुझे क्या चाहिए, पता करनी क्या चाहिए, is there any moving charge in the solid? Ionic solid में charge है, yes, we do agree. Cations and anions, charges are present, but it's ionic solid. Solid means these ions cannot move. This is not fluid. So ions are not moving. Therefore, we'll say ionic solids are insulators.
Make sure that you never misunderstood this concept that आयंस है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी. नहीं, जब भी आयंस है वो मूव कर रहे हैं तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी. So we will say these ionic solids are insulators. But if we take molten ionic solids, अगर हमने इनको मेल्ट कर दिया तो molten ionic solids में things will be different, and that is molten means fluid means liquid state आ गया, और liquid state आ गया तो now charge will be moving, and then we'll say they are conductors of electricity. Or one more thing, if we dissolve these ionic solids into water, means aqueous state. If we take ionic solids in aqueous state, we'll see yes, again the charges are moving. That's why we'll say these are also conductors. So all in all, to consolidate ionic solids के लिए हमें यही 3-4 चीजें याद रखनी है. They have what kind of forces? Electrostatic forces, which are very strong, due to which melting point is high, very high, which results in their hardness and brittlity. And the most important thing, if we are taking case of ionic solids, they are insulator, but taken in molten state or taken in aqueous state, they do conduct electricity, means they are good conductors of electricity. And yes, how can I forget examples? All metal salts, NaCl, KCl, zinc sulfate, zinc nitrate, calcium के salts हो, magnesium के हो, copper के हो, they all will fall under the category of ionic solids. So now moving to next category of solids, and that is according to the chart we made on the first page, that is molecular solids. So second category is molecular solids, और इसकी definition हम पहले ही settle कर चुके हैं. molecular solids क्या होते हैं? molecular solids उन solids को कहा जाता है जिनका constituent particle एक molecule होता है. means इसका सबसे छोटा हिस्सा जो हमें देखने को मिलेगा वो मिलेगा molecule. Let's take an example of a molecular solid. Suppose these are the molecules packed in a solid or in a crystal. These are molecules of a particular substance, and you want to take any example of molecule you can assume here. For example, I have taken here molecules of compound HCl. H और Cl आपस में कोवेलेंटली बॉन्डेड हैं, उसका यहाँ पर हमें कुछ कंसिडरेशन अभी नहीं करना है. वी नीड टू कंसिडर yes, HCl is a molecule, that's it. उसमें अंदर H और Cl एक दूसरे से कैसे कौन सी बॉन्ड बनाए हुए हैं वो अभी हमें नहीं देखना है. सो ये जितने भी मॉलिक्यूल्स मैंने यहाँ पे शेप में एलिप्स में बनाए हैं, ऑल ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स आर 1 HCl यूनिट. ये सभी मॉलिक्यूल्स आप एज्यूम करिए HCl के हैं, और ये मॉलिक्यूल्स अगर सॉलिडिफाई किया जाता है तो दे एग्जिस्ट लाइक दिस. सपोज ऐसे सॉलिड्स को मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कहा जाता है जिनकी एक सबसे छोटी स्पीशीज इज अ मॉलिक्यूल, और इसके बहुत से एग्जांपल्स हैं. इसके एग्जांपल वाइज फर्दर और इसकी क्लासिफिकेशन, इसकी और कैटेगरी अभी हमें डिस्कस करनी है. इसकी पहली कैटेगरी यानी मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की भी कैटेगरीज हैं, जिसमें पहली कैटेगरी आती है वो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जिनको हम कहते हैं नॉन पोलर सॉलिड्स. इट इज सब कैटेगरी ऑफ दिस मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कैटेगरी, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स या नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. ये कैसे स्पेसिफाई होते हैं? लेट्स टेक सम एग्जांपल्स. फॉर एग्जांपल N2, O2, H2, F2, and so on. In all these 4 or similar kind of cases, what we'll see, bond is formed between 2 similar atoms, like between 2 nitrogen, like between 2 oxygen, or between 2 hydrogen, or between 2 fluorine, and so many other examples of similar kind will fall under same category. इन सभी केसेस में अगर आप देखें, 2 एटम्स जो एक साथ जुड़े हैं उनमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का सारा डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल बीचों बीच रहेगा.
ना वो इस एटम की तरफ खिंचा हुआ होगा, ना वो इस एटम की तरफ अट्रैक्टेड होगा। सिमिलरली यहाँ, और जैसे अब हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 ईच ऑफ 1 हाइड्रोजन, ये 2 इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली बीच में लोकेटेड होंगे, और उसकी वजह क्या होगी? उसकी वजह एक ही है कि दोनों हाइड्रोजन एटम्स आर सिमिलर। लेट मी शो यू द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स। दोनों हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली बीचों बीच है, ना ज्यादा इस हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट हुआ है, ना ज्यादा इस हाइड्रोजन की तरफ, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन का नेचर एक जैसा है, और वो नेचर क्या है? टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन और टू लीव इलेक्ट्रॉन, इट इज सिमिलर। दोनों का नेचर जब एक जैसा है तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बीच में बराबर बंटवारे में बैठे हुए हैं। दे आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड एनी वन ऑफ द एटम। सिमिलरली in fluorine also. In all these kind of cases, electrons are exactly equally distributed in between these 2 atoms, so there are no kind of charges. किसी के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं है, किसी के पास इलेक्ट्रॉन कम नहीं है, किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है, म्यूचुअल बराबर बराबर शेयरिंग पे हैं। तो ऐसे सारे मॉलिक्यूल्स, इनमें कोई चार्ज ना होने की वजह से इन मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। और अगर ऐसे मॉलिक्यूल्स किसी सॉलिड का कॉन्स्टिट्यूएंट हैं तो ऐसे सॉलिड्स को कहा जाता है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल चूज करती हूँ, सपोज BF3। अब ये जो BF3 है ये किस कैटेगरी में आएगा? इज इट अ नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड? लेट्स चेक। बोरोन ट्राइफ्लोराइड नेचर में एक मॉलिक्यूल कैसे एग्जिस्ट करता है? इफ आई सी इट्स ज्योमेट्री, इट एग्जिस्ट लाइक दिस, BF3 ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है। अब इसके अंदर मैं देखती हूँ तो 3 ऐसे बॉन्ड हैं जहां पर डिसिमिलर एटम्स एक दूसरे से जुड़े हुए वाया अ सिंगल सिग्मा बॉन्ड। तो बोरोन और फ्लोरीन का जो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, यानी ये जो लाइन से हम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा रही हैं, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड होगा, क्योंकि फ्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के डॉट को या बॉन्ड को ये फ्लोरीन अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट किए हुए, इसीलिए इसके पर चार्ज थोड़ा सा ज्यादा नेगेटिव आ गया, तो हम उसे कहते हैं पार्शियल नेगेटिव। और इस बोरोन की तरफ ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स कम झुकाव रखते हैं, कम अट्रैक्ट होते हैं, ज्यादा उसकी तरफ खिंच जाते हैं फ्लोरीन की तरफ, इसीलिए बोरोन के ऊपर चार्ज आता है पार्शियल पॉजिटिव। ऐसा बॉन्ड जिसमें ड्यू टू अनइक्वल प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी अनइक्वल है या डिसिमिलर है? दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींच गया, और ब्रोमीन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ कम खींच गया। उसकी वजह से यहाँ पर पार्शियल चार्जेस डेवलप हो गए। ऐसे ही पार्शियल चार्जेस इस वाले बॉन्ड में भी डेवलप हुए, ऐसे ही पार्शियल चार्जेस इस वाले बॉन्ड में भी डेवलप हुए। तो ऑल इन ऑल इस BF3 के मॉलिक्यूल में 3 बॉन्ड्स ऐसे थे जिनमें चार्जेस डेवलप हो गए। ऐसे बॉन्ड्स जिनमें चार्जेस डेवलप हो जाते हैं, उन बॉन्ड्स को कहा जाता है पोलर बॉन्ड्स। 2 पोल बन गए, एक नेगेटिव पोल, एक पॉजिटिव पोल। अगर आप देखें तो ये पार्शियल नेगेटिव जो है वो एक इसका नेगेटिव पोल हो गया, जैसे अर्थ पोलर है, मैग्नेट पोलर है, वैसे ही ये बॉन्ड भी पोलर हो गया, विच हैज गॉट 1 नेगेटिव पोल, 1 पॉजिटिव पोल। 3 पोलर बॉन्ड्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो ऐसा मॉलिक्यूल देख के लगता है यस इट शुड बी अ पोलर मॉलिक्यूल। हाउ इट कैन बी नॉन पोलर? लेट्स सी। BF3 के एक बॉन्ड की पोलैरिटी को मेजर करने के लिए इसका हम डाइपोल मोमेंट निकालते हैं। डाइपोल मोमेंट इज मेजर ऑफ पोलैरिटी बिटवीन 2 बॉन्ड्स, और डाइपोल मोमेंट जैसा 11th में पढ़ा गया है बिल्कुल उसी तरह से मैं यहाँ अप्लाई करूंगी। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों दिया जाता है, और उसको एक एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। बॉन्ड की पोलैरिटी को एरो का हेड नेगेटिव एंड की तरफ बनाया जाता है, एरो की टेल पॉजिटिव एंड की तरफ बनाई जाती है। टेल पर परपेंडिकुलर डाल के एक पॉजिटिव सिंबल बन जाता है, इसलिए पॉजिटिव बोरोन को इस एरो की टेल मिली और नेगेटिव फ्लोरीन को इस एरो का हेड मिला। इस तरह से तीनों बॉन्ड्स पोलर हैं, और इसकी पोलैरिटी को दिखाने के लिए हमने एरो सिंबल का इस्तेमाल किया
to represent its dipole moment. तो इस बोरोन ट्राइफ्लोराइड के मॉलिक्यूल में तीन पोलर बॉन्ड्स हैं और उन तीनों का डाइपोल मोमेंट मैंने ग्रीन कलर के एरो से बना दिया. Now all these three dipole moments being vector quantities, they will be added up with their directions obviously. So ये वाले जो दो डाइपोल्स हैं इनका वेक्टर एडिशन इस डायरेक्शन में आएगा which will be exactly equal and opposite to this dipole. ये दोनों डाइपोल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्योंकि ये एकदम इक्वल और ऑपोजिट हैं, जिसकी वजह से BF3 का फाइनल डाइपोल मोमेंट केम आउट टू बी 0. सो जस्ट लुक हियर, तीन डाइपोलर बॉन्ड होते हुए, तीन पोलर बॉन्ड्स होते हुए भी ये मॉलिक्यूल 0 डाइपोल मोमेंट दिखा रहा है, मीन्स इट इज नॉन पोलर. तो यस, BF3 also falls in the category of non-polar solids. ऐसे ही कार्बन टेट्राक्लोराइड, अगर let me write carbon tetrachloride again. Carbon tetrachloride is a very good example, again just like BF3, to understand पोलैरिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल. इसका मतलब किसी भी मॉलिक्यूल के पोलर होने के लिए जरूरी नहीं है उसमें पोलर बॉन्ड्स होंगे तो वो पोलर होगा. तीन पोलर बॉन्ड्स होने के बावजूद भी BF3 नॉन पोलर है. सिमिलरली CCl4 में अगर हम आए तो CCl4 की ज्योमेट्री अगर मैं देखती हूँ तो टेट्राहेड्रल मिलती है. चार बॉन्ड्स हैं, चारों बॉन्ड्स पोलर हैं क्योंकि चारों बॉन्ड्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दिखाई दे रहा है, C और Cl. इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से फिर से 4 डाइपोल्स बनेंगे. कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव, क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. तो अगर यही चार्जेस को मैं देखते हुए फिर से डाइपोल बनाऊं तो इस बॉन्ड का डाइपोल is in this direction, tail is towards positive and head is toward negative. Similarly इस एरो का हेड ये और टेल ये, कुल मिला के एक मॉलिक्यूल में चार polar bonds हैं, but these 4 polar bonds add up in a vector direction like a vector quantity to give us a net dipole moment. इन चारों का addition will be net dipole moment, and again these 3 dipole moments will add up and its net dipole moment will be in this direction, which is again just equal and opposite to this. तो ये वाला डाइपोल और ये वाला डाइपोल both will cancel each other, and once again what I get, dipole moment of this compound is 0. So surprisingly one more case. Now like this lot of cases will appear in front of us जिनका हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा डाइपोल मोमेंट. अगर 3 पोलर बॉन्ड हैं, 4 पोलर बॉन्ड हैं, जरूरी नहीं है वो मॉलिक्यूल पोलर हो. 3 या 4 पोलर बॉन्ड होने के बावजूद भी कोई मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो सकता है, वो हमें उसकी ज्योमेट्री और वेक्टर एडिशन ऑफ डाइपोल मोमेंट से पता चलेगा. सो पहली कैटेगरी जो हम पढ़ रहे थे, लेट्स कंसोलिडेट दिस कैटेगरी एटलीस्ट इन इट्स बेसिक डेफिनेशन फॉर्मेट. नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स उन सॉलिड्स को कहा जाता है जिनका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज अ मॉलिक्यूल विच इज नॉन पोलर. और इस वक्त इस पेज पे, एक्सेप्ट फॉर दिस एग्जाम्पल, इस वक्त इस पेज पे जितने भी एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं ये सारे नॉन पोलर सॉलिड्स के, बिकॉज दे डू नॉट हैव अ पोलैरिटी. तो नॉन पोलर सॉलिड्स मीन्स नो charges in net, no dipole moment in net. Now quickly let's shift to second category of molecular solids. The molecular solids की second category में आते हैं polar molecular solids. Now they will be easy to understand. Polar molecular solids क्या होंगे? Obviously ऐसे molecules जिनका constituent particle is polar. जैसे मैंने पिछली स्लाइड में बना रखा था, अगर तो जैसे ये मॉलिक्यूलर सॉलिड में ड्रॉ कर रही हूँ HCl, ऐसे ही दूसरा मॉलिक्यूल इसके सामने HCl, ऐसे ही अनदर मॉलिक्यूल इसके सामने क्लोजली पैक्ड होगा HCl. नाउ सी द मॉलिक्यूल आई एम ड्रॉइंग इन स्पेसिफिक. फॉर एग्जांपल HCl, फॉर एग्जांपल HBr, फॉर एग्जांपल SO2
all these molecules are polar. Why? Let's see. Here only one bond. This hydrogen is less electronegative, therefore partial positive charge. This is more electronegative, therefore partial negative charge. Similarly, यहाँ पर partial positive, यहाँ partial negative. क्योंकि एक ही बॉन्ड है इसमें और वो भी पोलर है, उसको कैंसिल करने के लिए कोई दूसरा बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है यहाँ पर उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा. And yes, such molecules are polar because of having some net dipole moment. तो यहाँ पर dipole moment is not equal to 0. Similarly, HBr में भी यही होगा. HBr में अगर आप देखें again a dipole जो कि किसी और dipole से cancel नहीं हो रहा है, इसका भी dipole moment is non-zero. So we will say कि ये जो हमारे दोनों cases हम ले रहे हैं इसमें molecules are polar. Polar means इनके चार्जेस हैं, दे डू हैव पोल्स, पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल. एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव पोल दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव पोल, जैसे इस मॉलिक्यूल का नेगेटिव पोल इस मॉलिक्यूल के पॉजिटिव पोल की तरफ अट्रैक्टेड होगा. सिमिलरली दूसरे मॉलिक्यूल्स में भी आपस में ऑपोजिट पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे एंड दे विल शेयर अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इस तरह के मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को कहा जाता है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड. जैसे मैंने एक और एग्जांपल बना रखा है, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड. लेट्स टेक दिस also that how is it polar. Sulfur dioxide has geometry of this bent geometry with a lone pair over here. तो सल्फर डाइऑक्साइड में ये वाला जो दोनों बॉन्ड हमने S और O के बनाए हैं, इफ वी सी देम, इस बॉन्ड का डाइपोल विल बी इन दिस डायरेक्शन, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सल्फर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव. ऐसे ही इस बॉन्ड का डाइपोल इज इन दिस डायरेक्शन. सल्फर के ऊपर एक लोन पेयर भी है जिसका डाइपोल विल बी इन दिस डायरेक्शन. लोन पेयर का डाइपोल काफी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अ बॉन्ड. ये दोनों SO बॉन्ड के जो डाइपोल्स हैं इनका वेक्टर एडिशन विल बी इन दिस डायरेक्शन, which is yes opposite to lone pairs dipole moment but not exactly equal. क्योंकि ये bonds की वजह से या lone pair की वजह से ये दोनों dipole moments exactly equal नहीं है, इसलिए cancel out नहीं होंगे. net dipole moment थोड़ा सा इस डायरेक्शन में रहेगा. बॉन्ड वाला डाइपोल मोमेंट लोन पेयर वाले डाइपोल मोमेंट को काफी हद तक कैंसिल कर देगा बट जीरो नहीं करेगा. सो आई विल से सल्फर डाइऑक्साइड का डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं हो पाया, सो इट इज आल्सो नॉट इक्वल टू जीरो. तो ये सारे मॉलिक्यूल्स आपके पास पोलर मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में हो गए. इसीलिए इन मॉलिक्यूल से बनने वाला सॉलिड भी पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कहलाएगा. अब हम आखिरी कैटेगरी मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की शिफ्ट होते हैं, which is third, that is hydrogen bonded molecules. अब अगर मैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो उसके लिए पहले मैं कुछ एग्जांपल्स लेती हूं, उसके बाद इसकी डेफिनेशन पे हम आएंगे. देयर आर फ्यू एग्जांपल लाइक वाटर, लाइक अमोनिया एंड HF. इन सभी मॉलिक्यूल्स में पोलैरिटी बहुत ज्यादा होती है. ये पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस जो डेवलप हुए, दे आर वेरी हाई चार्जेस एज कंपेयर टू प्रीवियस डिस्कस्ड एग्जांपल्स. क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है पूरे पीरियोडिक टेबल का और ये काफी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, तो इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतना ज्यादा हो गया कि पोलैरिटी बहुत ज्यादा हुई और डाइपोल मोमेंट इज वेरी हाई, दैट टू इन दिस डायरेक्शन. सिमिलरली वाटर का केस लेते हैं. वाटर की ज्योमेट्री इज बेंट लाइक दिस और इसके पास दो लोन पेयर हैं, एक भी नहीं दो लोन पेयर हैं. तो अब हम वाटर के केस में डाइपोल मोमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं. यहां पर एक बॉन्ड पोलर, यहां दूसरा बॉन्ड पोलर, दोनों का नेट addition, I'm sorry, the direction is reverse. Let me draw water ka dipole once again like this. This is oxygen, these are two hydrogen. Now this is dipole moment of OH bond, this is dipole moment of another OH bond and there are two lone pairs.
इन दोनों लोन पेयर्स का डायपोल मोमेंट का नेट सम ऑलरेडी इस डायरेक्शन में है और इधर से आने वाले दोनों वेक्टर्स का सम भी इस डायरेक्शन में है. ड्यू टू दिस मॉलिक्यूल एज ह्यूज डायपोल मोमेंट. ये दोनों बॉन्ड्स का नेट, इन दोनों लोन पेयर का नेट डायपोल मोमेंट सब कुछ एक डायरेक्शन में एड अप हो गए. यू विल सी वाटर मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट म्यू इज वेरी हाई. इतना हाई हो गया कि इसको हमने पोलर मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में रखा ही नहीं, क्योंकि इसका एक्सेप्शनली हाई डायपोल मोमेंट मिला. बिल्कुल इसी तरह से इसका भी एक्सेप्शनली हाई डायपोल मिला और अमोनिया का भी हाई डायपोल मोमेंट मिला. इन तीनों के इतने ज्यादा हाई डायपोल मोमेंट मिलने की वजह से हमने इन तीनों के लिए एक नई कैटेगरी बना डाली, जिसको हमने नाम दिया हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स. यानी जिन दो मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले फोर्सेस लगने पॉसिबल हैं, उन मॉलिक्यूल्स के सॉलिड्स को कहा गया हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स. जस्ट फॉर एग्जांपल, ये एक मॉलिक्यूल मैंने यहां पर बनाया, सपोज NH3 का. NH3 का H विल बी हाईली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दूसरे NH3 का N, क्योंकि ये हाईली नेगेटिव एंड है, ये हाईली पॉजिटिव एंड है. सिमिलरली HF की बात करते हैं. HF के दो मॉलिक्यूल्स में H एंड F, फ्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, दूसरा एक और HF मॉलिक्यूल इसकी तरफ बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच हाई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, हाई डायपोल, हाई चार्ज की वजह से. इसीलिए इसको एक नई कैटेगरी का नाम दे दिया गया, एंड दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल. सो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स में सिर्फ ये तीन ही तरह के मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होंगे. नाउ लेट्स कंसोलिडेट. अब तक हमने मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में कितनी कैटेगरी पढ़ी? कैटेगरी 1 जो हमने पढ़ी वो थी नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. कैटेगरी नंबर 2 थी जहां हमें डायपोल मोमेंट मिलता है मॉलिक्यूल्स में, वो थे हमारे पास पोलर सॉलिड्स. कैटेगरी 3 हमने जो पढ़ी वो थी हमारे पास हाईली पोलर, या उसके लिए सही अगर टर्म हमें दी गई तो हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स. नॉन पोलर सॉलिड्स में दो मॉलिक्यूल्स के बीच किसी तरह के चार्ज्ड फोर्सेस नहीं लग सकते. सभी तरह के मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, जो हमारी मेन हेडिंग है इस वक्त, सभी तरह के मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में जो फोर्सेस ऑपरेट होती हैं दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, उन्हें कहा जाता है वैन डर वाल्स फोर्सेस. वैन डर वाल्स फोर्सेस आर वीक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो किसी भी तरह के दो मॉलिक्यूल्स के बीच ऑपरेट होते हैं. तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्सेस ऑपरेट हो रही हैं उनको कहा जाता है वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. तो ये वैन डर वाल फोर्सेस सभी कैटेगरी में एप्लीकेबल हैं, लग रहे हैं. देखें कौन से. नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में सबसे वीक फोर्सेस होंगे. ऑब्वियसली आपस में कोई चार्ज है नहीं, किसी तरह के चार्ज डेवलप हुए नहीं है, इसलिए बहुत वीक फोर्सेस लगेंगे. और उन फोर्सेस को जो दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच लगते हैं, जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लेती हूँ दो आर्गन के बीच, देयर आर नो चार्जेस, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये वाले फोर्सेस कहलाते हैं लंडन फोर्सेस या डिस्पर्शन फोर्सेस. ये फोर्सेस सबसे कमजोर, सबसे वीक फोर्सेस कहलाते हैं दो मॉलिक्यूल के बीच जो लग सकते हैं. इसके बाद आता है पोलर मॉलिक्यूल. पोलर मॉलिक्यूल मीन्स जिसमें चार्जेस डेवलप हुए हैं, जैसे कि एग्जांपल में ले रही हूं HCl और HCl. Cl का पार्शियल नेगेटिव और H का पार्शियल पॉजिटिव, इन चार्जेस की वजह से इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा एज कंपेयर टू दिस कैटेगरी. और उन फोर्सेस को हम क्या नाम देते हैं? डायपोल इंटरैक्शंस और फोर्सेस. तीसरी कैटेगरी जो हमने अभी पढ़ी, उसमें हम क्या देखते हैं? दो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें डायपोल मोमेंट भी एक्सेप्शनली हाई है, जैसे कि अमोनिया, HF या वाटर. इसमें तीन ही एग्जांपल है हमारे पास. तो अमोनिया का एक N
सपोज ये एक N है और ये इसके 3 H जो लगे हुए थे। अमोनिया का एक N साथ वाले मॉलिक्यूल के एक H से बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा हाई डाइपोल की वजह से, और उन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को, सबसे स्ट्रांग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच लग सकते हैं, उनको नाम दिया गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो ऑल इन ऑल मॉलिक्यूलर सॉलिड्स 3 टाइप के थे। एक नॉन पोलर जिनमें सबसे कमजोर फोर्सेस लंदन फोर्सेस, एक पोलर जिनमें मॉडरेट स्ट्रांग फोर्सेस दैट इज डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शंस, और तीसरी कैटेगरी हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स जिनमें सबसे स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहे हैं जो दो मॉलिक्यूल्स में कभी भी लग सकते हैं, और वो हो गए हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ऐसे सॉलिड्स देख के अब हमें क्लियरली समझ आ रहा है सबसे वीक फोर्सेस इसमें, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट विल बी लीस्ट। अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करती हूं तो इन सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो सबसे कम होगा, मींस लीस्ट। व्हाई? बिकॉज फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर वेरी लेस। इन वाले मॉलिक्यूल्स का यानी पोलर मॉलिक्यूल्स या पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट विल बी नॉट लीस्ट, इससे ज्यादा होगा, और आई कैन से लो। और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट विल बी हाई एज कंपेयर टू रेस्ट 2 केसेस। सो अगर मुझे कोई मेल्टिंग पॉइंट में ऑर्डर लगाने को कहता है तो हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स मतलब कैटेगरी 3 हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, देन कैटेगरी 2 दैट इज पोलर molecular solids, and then category 1 that is non-polar molecular solids। सबसे जल्दी ये मेल्ट होंगे, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक है, और ऑटोमेटिकली फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ही फिजिकल स्टेट को डिसाइड करते हैं। तो फाइनली आई कैन से वन मोर थिंग एंड दैट इज नॉन पोलर सॉलिड्स जितने भी हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स ऑब्वियसली जितने भी हैं, दे आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर। इनके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इतने वीक हैं कि रूम टेम्परेचर की एनर्जी इज इनफ टू इवेपोरेट देम एंड दे आर गैसेस। So non-polar molecular solids are generally gases at room temperature. Very few are liquid also. So क्योंकि interactions ही बहुत weak हैं, forces of attraction ही बहुत weak हैं, इसीलिए लंदन फोर्सेस या डिस्पर्शन फोर्सेस के वीक होने की वजह से नॉन पोलर सॉलिड्स जनरली रूम टेम्परेचर्स पर गैसेस या लिक्विड्स होते हैं। सेकेंड कैटेगरी दैट इज पोलर सॉलिड्स। पोलर सॉलिड्स की खास बात क्या है? उसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लंदन फोर्सेस से थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस उनको कहते हैं। ऐसे सॉलिड्स में यस मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा होगा नॉन पोलर सॉलिड्स के कंपैरिजन में, बट दे आर ऑल्सो गैसेस or liquids at room temperature. And finally हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स। तो जो हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स हैं इनमें फोर्सेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग, और आई शुड से स्ट्रॉन्ग इनफ टू बेयर द रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पर दे आर liquids, और if something is solid it is soft solid, easily meltable और easily हैंडल हो जाते हैं ये सॉलिड्स। सो हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स आर जनरली लिक्विड्स और सॉफ्ट सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर, यानी इन सभी सॉलिड्स को सॉलिडिफाई किया है अगर हमने तो बहुत लो टेम्परेचर्स पे जाके सॉलिडिफाई करके इनके स्ट्रक्चर को स्टडी करके फिर ये एनालिसिस निकाला है। सो ऑल इन ऑल मॉलिक्यूलर सॉलिड्स ये 3 तरह के होते हैं, हर एक के एग्जांपल्स हमने देखे। हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स में सिर्फ गिनती के 3 एग्जांपल्स आएंगे, अमोनिया, HF और वाटर। ये सबसे स्ट्रॉन्ग है, इनमें सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट इनका है, सबसे ज्यादा सॉलिड स्टेट में अगर कोई मिलता है रूम टेम्परेचर पर तो यही कैटेगरी मिलती है। तो यहाँ खत्म होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब एक बार जितना अब तक हमने पढ़ा है उनको कंपेयर करते हैं। हमने अब तक पढ़ा है आयोनिक सॉलिड्स और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की 3 कैटेगरी को। उसमें हम ये पढ़ चुके हैं कि आयोनिक सॉलिड्स के फोर्सेस सबसे स्ट्रॉन्ग, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। उसके बाद आएगा हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्योंकि उसके फोर्सेस होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग फोर्सेस। आफ्टर दैट वील सी पोलर
मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, क्योंकि उसमें फोर्सेस आपको मिलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो थोड़े इससे वीक होते हैं। एंड लास्ट, जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम है, यानी लंदन फोर्सेस, वो किस में मिलते हैं हमको? नॉन पोलर सॉलिड्स में। तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और भी वीक, लीस्ट। तो ये ट्रेंड आप कह सकते हैं दोनों चीजों का है। दिस ट्रेंड इज ऑफ ईदर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दीज सॉलिड्स और फोर्सेस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से हैं उसके बारे में। सो अब तक हमने आयोनिक सॉलिड्स और 3 कैटेगरीज ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को वाइंड अप किया। नाउ कमिंग टू लास्ट 2 कैटेगरीज विच आर वेरी short in details, and that is third category is metallic solids. As the name indicate, metallic solids वो solids हैं जिनका constituent particle सिर्फ एक metal हो सकता है। तो इसमें आप examples अगर देखेंगे तो lot of metals, all metals rather I should say, for example copper, for example gold, example sodium, potassium, silver and magnesium, ये सभी metals जो हैं they all will fall under the category of metallic bond। अब हमें देखना है ये actually में होता क्या है, किस तरह के forces of attraction है। नाम बता रहा है metals में, metallic bond में सिर्फ metals हैं, कोई 2 dissimilar atoms नहीं है। तो पहले तो मुझे 2 metals के बीच की bonding को समझना होगा, तब जाके हम ये बात कर सकते हैं कि metallic solids होते कैसे हैं। But if we see rest of the things, metallic solids में forces इतने strong हैं कि generally ये बहुत hard होते हैं, hard solids होते हैं room temperature पर। They are hard solids at room temperature, इनका melting point भी high होता है। They are brittle, they are not brittle, rather they are malleable, they are ductile, unlike आयोनिक सॉलिड्स। आयोनिक सॉलिड्स हमने पढ़े थे हार्ड हैं और ब्रिटल हैं। मेटालिक सॉलिड्स हार्ड तो हैं लेकिन दे आर डक्टाइल, दे आर मिलिएबल, दे आर सोनोरस, दे हैव अ लशर, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट ऑल्सो। तो मेटालिक सॉलिड्स की सारी प्रॉपर्टीज आपको पता है, बट अगर हमें कुछ नया देखना है या समझना है तो मेटालिक सॉलिड्स में फोर्सेस कौन से हैं उसको समझने के लिए लेट मी ट्राई टू ड्रॉ a piece of metallic crystal. It's a very special kind of bonding we are seeing for the first time. मेटल के टुकड़े में या क्रिस्टल में या पीस में अगर मैं देखूं तो मुझे क्या मिलता है? बहुत सारे मेटल के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक दूसरे से स्ट्रांगली अटैच्ड हैं, बट इनमें बॉन्ड कौन सा बना हुआ है? 2 मेटल के एटम्स बिल्कुल सेम हैं। सपोज ये जो मेटल मैं यहाँ पे बना रही हूँ ये मेटल सोडियम मेटल है। अब सोडियम मेटल है अगर यहाँ पर एक ये, दिस इज सोडियम, और ये सारे एटम सोडियम के हैं। एक सोडियम दूसरे सोडियम से कोवेलेंट बॉन्डिंग तो बना नहीं सकता बिकॉज बोथ कैन नॉट शेयर, बिकॉज दे डू नॉट हैव अ टेंडेंसी टू शेयर, और दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है फ्रॉम इट्स नियरेस्ट नोबल गैस, तो दोनों ही अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसी को देना चाहेंगे, लेना बिल्कुल नहीं चाहेंगे, तो शेयरिंग का तो सवाल नहीं होता। सो मेटल्स में कोवेलेंट बॉन्डिंग तो नहीं होती आपस में, तो 2 मेटल एटम्स कैन नॉट बी इन कोवेलेंट बॉन्डिंग। फिर कौन सी बॉन्डिंग है? अगर मैं बात करूं शायद दोनों के बीच आयोनिक फोर्स हो, आयनिक बॉन्ड हो। लेट्स सी, आयनिक बॉन्ड के लिए एक कैटायन चाहिए और एक एनायन चाहिए, लेकिन सारे एक ही जैसे एटम्स हैं, दैट इज सोडियम मेटल, और सभी सोडियम मेटल्स को अगर मैं देखूं तो एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन ही बनाने की टेंडेंसी है। दे डू नॉट हैव टेंडेंसी टू फॉर्म एनायन। So without anion, only cation cannot form ionic bonding. तो ना तो 2 एटम्स के बीच में, यहाँ पर 2 मेटल्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, ना आयोनिक बॉन्ड है। फिर कौन सा बॉन्ड है? एक नए ही किस्म का बॉन्ड है, दैट इज कॉल्ड एज मेटेलिक बॉन्ड। अब इस मेटेलिक बॉन्ड का डिटेल हम देखते हैं। मेटेलिक बॉन्ड एक्चुअली होता क्या है? ये सारे सोडियम, जितने भी सोडियम एटम्स हैं, ऑल सोडियम एटम्स ड्यू टू देयर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप देखें तो इन्होंने सबने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन।
अब हुआ क्या, सोडियम की टेंडेंसी थी नोबल गैस अटेन करना है, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया खुला क्रिस्टल के अंदर। These electrons are called as mobile electrons, जो चल सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो पूरे क्रिस्टल में अगर मैं देखूं तो बहुत सारे मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम here and there। तो I can say yes, this model is termed as इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। तो ये जो इलेक्ट्रॉन सी मॉडल बन के आया है वो क्या कहता है, मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देते हैं जिसके से इलेक्ट्रॉन का एक फ्री फ्लोइंग स्ट्रीम या सी बनता है, और उसके बीच में कैटायंस जो बने इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद, सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, आयरन, क्रोमियम, इन सभी मेटल्स के, दे ऑल आर स्टेशनरी पॉजिटिवली चार्ज बॉडीज विच आर टर्म्ड एज कैर्नल्स। इन स्टेशनरी कैटायंस को हम कहते हैं kernels. Now we have a complete model of metallic bond which says इन सभी पॉजिटिवली चार्ज कैटायंस या kernels के बीच अब रिपल्शन होने के बजाय स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आ गया, क्योंकि इनके बीच बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं हर वक्त लगातार। जो एक इलेक्ट्रॉन पहले एक मेटल का था, एक ही न्यूक्लियस को बिलोंग करता था, एक ही सोडियम को बिलोंग करता था, अब वो इलेक्ट्रॉन लगातार मूव कर रहा है और एक साथ 10, 5, 9, 12, 15 सोडियम एटम्स को बिलोंग करता है। So, इतने फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट कर गए कि इन दोनों कैर्नल्स या सभी कैर्नल्स के बीच इलेक्ट्रॉन्स की लेयर्स, स्ट्रीम फ्लो आ गया, जिसकी वजह से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट कर गए और एक बहुत हार्ड क्रिस्टल बन गया। अब अगर इस मेटल के टुकड़े को मैं इलेक्ट्रिक सर्किट में ऐड कर दूं, सपोज वन इज पॉजिटिव एंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अदर इज नेगेटिव एंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे ही हमने इसको इलेक्ट्रिसिटी सर्किट में ऐड ऑन किया, वैसे ही पॉजिटिव एंड की तरफ से इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं पूरे इलेक्ट्रॉन सी मॉडल में, वो पॉजिटिव एंड की तरफ अट्रैक्ट होके रश करने लेंगे फ्रॉम नेगेटिव एंड, ऑपोजिट अट्रैक्ट। सो सारे इलेक्ट्रॉन्स इमीडिएटली मूव कर जाएंगे पॉजिटिव एंड की तरफ, जिसकी वजह से सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। सर्किट कंप्लीट होगा तो हम कहते हैं यस, मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो ऑल इन ऑल मेटालिक सॉलिड्स, हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्यों हाई मेल्टिंग पॉइंट है? क्योंकि अभी हमने देखा इतने स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है kernels और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। हाई मेल्टिंग पॉइंट, दे आर वेरी हार्ड, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि मेटल्स सॉलिड स्टेट में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, और कोई सॉलिड अब तक हमें नहीं मिला जो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता हो, क्योंकि चार्जेस मूव नहीं कर सकते उसमें। लेकिन मेटल्स ऐसे सॉलिड हैं जो सॉलिड होने के बावजूद भी, स्टेशनरी कैर्नल्स होने के बावजूद भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। और उसकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का रीजन एक ही है, दैट इट हैज स्ट्रीम ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स का सी है, जिसकी वजह से इसमें लश्चर भी है, जिसकी वजह से इसमें गुड कंडक्टिविटी ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी है। तो यहाँ पे मेटालिक बॉन्डिंग या मेटालिक crystals भी खत्म हुए, which are good conductors of heat and electricity. They are malleable, ductile, sonorous, lustre. Everything is due to these free electron. The fourth and last category of solids to be discussed or crystals to be discussed is covalent solids or covalent crystals. As the name suggests, covalent crystals are those crystals in which constituent particles are atoms, not ions, not molecules, not metals. For example, let me draw a covalent solid, and here I am trying to draw covalent solid, a very famous covalent solid, diamond. In diamond, various carbon atoms are linked to each other via single bonds. Let me draw its structure over here so that you can understand the structure of diamond. And diamond is the best example to understand every property of covalent solids. So in case of diamond, one carbon atom is attached tetrahedrally to other 4 carbon atoms. This is central carbon atom. Here, one more carbon atom. This, all in all, one carbon is attached to
other 4 carbon atoms via single bonds or via covalent bonds. That's why the name came covalent solids, because various atoms are attached via covalent linkages or covalent bonds. And this is the smallest possible unit of this solid. So we say कोवेलेंट सॉलिड्स के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स हैं और ये एटम्स आपस में किस तरह के फोर्सेस या किस तरह के बॉन्ड से बॉन्डेड हैं. दे आर कोवेलेंट फोर्सेस और दे आर कोवेलेंट बॉन्ड्स. नाउ फर्दर दिस कार्बन इज फर्दर अटैच्ड टू अदर 4 carbon. So if we see this carbon atom, it is further bonded to 4 other carbon atoms via sigma or covalent bonds. Now every other carbon atom is attached to other 4 carbon atom, and in this way पूरे डायमंड के क्रिस्टल में आप देखेंगे हर कार्बन एटम फर्दर 3 और से अटैच्ड है और ऑल इन ऑल हर कार्बन एटम 4 दूसरे कार्बन एटम से अटैच्ड है, विच लीड्स टू अ कंप्लीट 3 डायमेंशनल नेटवर्क. ऐसे सॉलिड्स जिनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर एटम्स और जो सिग्मा बॉन्डेड हैं, जिनके साथ सिंगल बॉन्ड बना के अदर कार्बन एटम्स जैसे अटैच्ड है, इस केस में इस तरह के सॉलिड्स को कहा जाता है कोवेलेंट सॉलिड्स. सो कोवेलेंट सॉलिड्स के कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स हुए एटम्स और इन्हीं कोवेलेंट सॉलिड्स के कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस हो गए कोवेलेंट फोर्सेस और सिग्मा बॉन्ड्स. दूसरा एग्जांपल इस कैटेगरी में ग्रेफाइट का आता है. ग्रेफाइट में भी कॉन्स्टेंट पार्टिकल इज कार्बन. हर कार्बन एटम फर्दर और कार्बन एटम से लिंक होके हेक्सागोनल रिंग्स बनाता है और जब आप कंप्लीट क्रिस्टल देखते हैं तो every carbon is attached to 3 other carbon atoms. Let me show you 2 hexagonal rings in which we'll choose a carbon atom which is in between the layer like this carbon atom. Now have a look. This carbon atom is attached to 3 further carbon atoms via single bond, sigma bond, which is very strong. And full crystal is like this. पूरे क्रिस्टल में इसी तरह से हेक्सागोनल रिंग्स बने हुए हैं और हर कार्बन 3 कार्बन से अटैच्ड है. सो इन दिस केस हर कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन इज फ्री. हर लेयर में हर कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन इज फ्री और इसी तरह की ग्रेफाइट की नीचे की जो लेयर होगी उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री है और ये फ्री इलेक्ट्रॉन वीक पाई बॉन्डिंग से जुड़े होते हैं विच आर रियली वीक फ्री टू मूव. हेंस इस तरह का क्रिस्टल जिसमें एटम कांस्टेंट पार्टिकल है वो इस कैटेगरी में आता है कोवेलेंट सॉलिड्स. और स्पेशली अगर मैं ग्रेफाइट के क्रिस्टल की बात करूं तो ग्रेफाइट के क्रिस्टल में वी हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू मूव. हर कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन जो अगली लेयर के साथ पाई लिंकेज में है दैट इज फ्री टू मूव, जिसकी वजह से ग्रेफाइट बिकम्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एक अकेला यही नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है, अदरवाइज सारे नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर. सो इफ वी सी डायमंड इट इज बैड कंडक्टर. क्यों? क्योंकि इसमें एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है. एंड इफ वी सी ग्रेफाइट इट इज अ गुड कंडक्टर. यही प्रॉपर्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर जो है इसकी ग्रेफाइट की, इसी की वजह से ये एक अच्छा ल्यूब्रिकेंट भी है बिकॉज वन लेयर स्लिप over the other layer. So it's a solid lubricant. It's a exceptional solid which conduct electricity being non-metal. So covalent solids को अगर मैं consolidate करूं तो इसके constituent particles are atom. Best example to understand this is diamond and then graphite, and forces of attraction are covalent forces or covalent bonds. अब इनके forces काफी strong है, लेकिन अगर हम अब चारों सॉलिड्स को कंपेयर करेंगे किसमें फोर्सेस सबसे ज्यादा स्ट्रांग और किसमें फोर्सेस सबसे ज्यादा वीक होंगे, उसके लिए पहले एक चीज हम अंडरस्टैंड करें. कोवेलेंट सॉलिड्स का पूरा एक अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो इट नेवर एंड्स. ये चलता जाता है, इट नेवर एंड्स. इसका कोई बाउंड्री नहीं हम बना सकते कि ये कहाँ खत्म होगा. इस तरह के 3 डायमेंशनल नेटवर्क की वजह से, ये जो 3 डायमेंशनल नेटवर्क बन रहा है इसकी वजह से दीज सॉलिड्स आर वन ऑफ द हार्डेस्ट सॉलिड्स पॉसिबल विद अस.
इसका 3D नेटवर्क बनना इसको सबसे ज़्यादा हार्ड बना देता है. मीन्स इनके मेल्टिंग पॉइंट्स विल बी क्वाइट हाई, वेरी हाई. इतने हाई होते हैं मेल्टिंग पॉइंट्स कि हम इनके मेल्टिंग पॉइंट्स तक पहुंचाने से पहले देखते हैं कि ये डिकम्पोज हो सकते हैं. They are hardest substance, and as we know, diamond is one of the hardest substance possible. So not because of the covalent bond, but because of the three-dimensional network, they become very hard. They have very high melting points. So अब अगर हम अब तक के अपनी चारों कैटेगरीज को कंसोलिडेट करें तो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट्स हमको कोवेलेंट सॉलिड्स में मिलेगा. उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट्स हमको आयोनिक सॉलिड्स में मिलेगा. उसके बाद हमको मेटेलिक सॉलिड्स में मिलेगा. एंड इन लास्ट हमको मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में मिलेगा. और फर्दर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में भी जैसे हमने पहले बात की, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, और उसके बाद पोलर सॉलिड्स का सबसे ज्यादा, उससे कम, और लास्ट विल बी नॉन पोलर सॉलिड्स. So all in all, highest melting point we see in covalent solids because of its 3D network, and weakest या least melting point we see in non-polar molecular solids. Electrical conductivity की हम बात करें तो metallic solids are good conductors of electricity. Covalent solids are poor conductor of electricity with an exception ऑफ ग्रेफाइट. एक ग्रेफाइट की एक्सेप्शन स्पेशल केस को हम छोड़ दें तो बाकी सारे के सारे कोवेलेंट सॉलिड्स आर पुअर कंडक्टर्स. लेकिन अगर हम सॉलिड स्टेट की बात करें तो गुड कंडक्टर्स आर ओनली मेटालिक सॉलिड्स. मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर ऑल्सो पुअर कंडक्टर्स, whereas ionic solids are also poor conductors, but taken in molten or aqueous condition they will conduct electricity. So this is consolidation of their properties, means electrical conductivity or their forces, kind of forces, their melting points. So here we consolidate or we complete the topic classification of crystalline solids.